Hello guys, welcome to Courage Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, 21st of May 2022 के दिन एग्जाम है and it's been only 2 days left. सिर्फ 2 दिन का समय बचा है. Obviously, you guys would be preparing well. So I am going to discuss about some points जो आपको अभी से लेकर के take care करनी है, जो आपको consider करनी है, और those points will definitely gonna help you in cracking the exam. When you will be taking the exam, that time also वो points आपको बहुत ज़्यादा help करने वाले. So I'll be discussing about what आपकी strategy अब से लेकर के जब तक आप exam hall से बाहर नहीं आते हो तब तक की आपकी strategy क्या होनी चाहिए. What should be your preparation, आपकी preparation किस तरीके से होनी चाहिए. See, preparation तो already जो आपको करनी थी वो आप कर चुके हो. इन 2 दिनों में आपकी preparation जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली. यू हैव टू रिवाइज, राइट. बट इन टर्म्स ऑफ माइंड सेट, यू नो, जब भी आप एग्जाम को या किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, देयर शुड बी 2 थिंग. एक प्रिपरेशन, दूसरी माइंड सेट. प्रिपरेशन, आई नो यू गाइज आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर डूइंग you were doing a lot of preparation, you have done your hard work, now you are ready for the exam. But the one thing which could be lacking you is your mindset. So you have to keep your mindset high, you have to keep a positive mindset to deliver in the exam, right? With the negative mindset you cannot just achieve what you want, right? So students are ready with the preparation, they know that they are doing well, but 2 दिन पहले I know कि students के मन में ये चीज़ें आती है कि whether I am ready for the exam or not, will I be achieve to score such mark that I would be getting a good seat in a good government college. So ये चीज़ें आती है, doubts आते हैं, confusion आते हैं, and this is not the time to let those thoughts enter in your mind. ये अब वो समय नहीं है. See, you have done your preparation, all you have to think is yes, I have to give my best, I have to give my 100%. ये doubts की जो है वो doubts आपके मन में नहीं आनी चाहिए, right? And that is why I'm saying that for achieving your goal or for cracking the exam, preparation plus mindset is very necessary. So you have to be positive. अभी से लेकर के आपको पॉजिटिव रहनी है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आपको प्रिपरेशन के साथ अपनी जो पॉजिटिव माइंड सेट है वो आपको अप टू मार्क रखनी है. यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस. जो आपने प्रिपरेशन की है, जस्ट थिंक दैट ओके, आई हैव प्रिपेयर्ड माई पार्ट, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गिव 100% in the exam. So this is the first point which I wanted to tell you. In terms of preparation, in terms of when you will be taking the exam, these things you should keep in your mind, right? The second one is, see, जब आप confidence, you can gain your confidence before the exam, but जब आप हॉल में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, and you will be seeing your question paper, so obviously क्वेश्चंस को देख करके अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रही है, सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आ रही है, तो अगेन वो कॉन्फिडेंस कम होने लगती है. सो दैट इज व्हाई व्हाट यू हैव टू डू इज अटेंड इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. आप इजी क्वेश्चंस को जैसे जैसे अटेंड करते हो वैसे वैसे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ती चली जाती है. एंड देन इफ यू कम फॉर द टफर क्वेश्चन और लॉन्गर क्वेश्चन, यू विल एबल टू डिलीवर वेल. आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे, एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पे आप यू विल रियली हिट फॉर क्रैकिंग इट, राइट. सो पहले जो आपको आती है, जो जिस पोर्शन पे, जिन क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस है, जस्ट टेक दोज क्वेश्चंस, जस्ट टेक इजी क्वेश्चंस, डू इट completely, do it properly, and then when you once gain the confidence, just jump into the questions which are longer or which you think are little on the tougher side, right? So this is the second point. Now when you will be taking the tougher questions or longer questions, see, there is only one answer which is correct, the rest of the 3 are wrong, right? Out of 4 or 5 options, 4 ऑप्शंस, जो 3 आंसर्स होंगे वो ऑब्वियसली गलत होगी और एक ही आंसर जो है वो उसमें सही होगी, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन यू आर हैंडलिंग द क्वेश्चंस, व्हेन इफ समवेयर यू आर स्टक, सी, इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन कंप्लीटली, अगर आपको चारों आंसर में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन. क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जस्ट टू अटेंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, दे they just select the wrong answer. वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने के लिए वो फ्लूक लगा करके आ जाते हैं, फ्लूक मार्क करके आ जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो विद दैट माइंडसेट. आपको क्या करना है, if you don't know the question completely, leave it.
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्टूडेंट्स की जो है वो मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज ऑफ वो 10 मार्क्स 20 मार्क्स जो आपके नेगेटिव मार्किंग आती है उसके वजह से जो आपकी रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे आ जाती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती है, देन लीव इट। अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा है, you have prepared for that topic, so what you have to do is, out of 4 questions, try to eliminate the answers. Out of 4 answers, try to eliminate. If you eliminate just one answer, if you come on a conclusion कि ये आंसर D तो नहीं होगा, right, that means आपके 33% जो है वो सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अगर उन रिमेनिंग 3 आंसर्स से इफ यू एबल टू एलिमिनेट वन मोर, दैट इज कि एक और ये सी भी नहीं होगा, नाउ वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस ए और बी, तो आपके जो सक्सेस रेट होती है वो 50% बढ़ जाती है। सो अगर आपकी सक्सेस रेट, इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑफ द आंसर्स, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना ही करना है। यू हैव टू अटेंड दैट क्वेश्चन इन विच यू आर थिंकिंग दैट 2 आंसर्स आर नॉट पॉसिबल, बट बिटवीन द रिमेनिंग 2 1 इज पॉसिबल। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना ही करना है। इफ यू आर नॉट इवन रेड द क्वेश्चन, तो और आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना ही नहीं है, अदरवाइज टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, इट्स सिंपल, राइट। तो ये चीजें आपको करनी जरूरी है। नाउ ये जो 2 दिन का समय बचा हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव नॉट टू लर्न एनी न्यू थिंग, राइट, यू हैव टू just revise previous year question paper. This time from 2021 the question pattern has been changed, from 300 questions to, it has come to 200 questions within the same frame of time, same period of time, which is 3 hours 30 minutes. So number of questions reduce kiye gaye. This is for the students who are taking the NEET PG exam for the first time. Obviously newcomers honge jo is baar first time exam ko le rahe honge, so they have reduced the question from 300 to 200 in the same frame of time, 3 hours and 30 minutes. So before that, उससे पहले जब 300 क्वेश्चंस हुआ करते थे तो एम्पल टाइम नहीं मिलती थी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलती थी टू इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू डू द पेपर प्रॉपरली। नाउ यू आर गेटिंग सम मोर टाइम, सो ऑब्वियसली आपको सफिशिएंट टाइम मिल सकती है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन वेल, एंड यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन वेल। तो अब आपको ये जो चीज की गई है अथॉरिटी की तरफ से, दिस इज अ गुड स्टेप। सो ऑब्वियसली अब जो ये 2 दिन बचे हुए हैं, यू हैव टू रिवाइज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट, previous 3 year 4 year 5 year question paper you have to revise. You have not to learn anything new, कोई नई न्यू चीज नहीं सीखनी है until and unless it comes under 2080 principle. Try to accumulate 2080 principle. What is 2080 principle? At least 20% of the questions will be repeated in 80% of the 80% of the time. So 20% questions जो होंगे वो 80% times जरूर आते होंगे. So what are those 20% questions? अगर कोई वैसी टॉपिक या कोई क्वेश्चन जो आपकी रह गई हो, जो आपने प्रिपेयर नहीं की हो या जिस पर आपकी कमांड नहीं हो, उन 20% क्वेश्चंस को, उन 20% टॉपिक्स को ट्राई टू लर्न, try to take those questions in your command, right? क्योंकि this is the universal rule I'm telling you guys. 2080 प्रिंसिपल के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आ रही है, जस्ट लर्न दैट वन, राइट? क्योंकि अगर 200 क्वेश्चंस की अगर 20% क्वेश्चंस देखें तो 40 क्वेश्चंस आपके ऐसे जरूर होंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, राइट? सो 40 to 60 क्वेश्चंस यू कैन फाइंड कि रिपीट हो सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यू हैव टू रिवाइज. और अगर कोई क्वेश्चन ऐसी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रही है, विच इज कमिंग अंडर दैट 20% विच इज बिन रिपीटेड टू 80% ऑफ द टाइम्स, अगर उसके अंदर आ रहे तो यू हैव टू लर्न दैट. बट उसके अलावा कोई न्यू चीज़ें ऐड करने की, कोई न्यू चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज सी, अगर आप न्यू चीज़ें सीखने जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल डल योर कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगी. सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट, यू हैव टू डू सम स्मार्ट वर्क. नाउ इट इज़ नॉट अ टाइम टू ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ टाइम टू डू सम स्मार्ट वर्क. सो डू स्मार्टली. So just accumulate these things, just try to do these things, and the most important is when you will be taking the exam, your mindset should be high. One more thing,
एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. दिस इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड वन मोर थिंग, इन 2021 बिकॉज ऑफ रेन, बारिश होने की वजह से देयर वर सम स्टूडेंट्स जो अपने सेंटर पे टाइमली नहीं पहुंच पाए थे और उनको एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि रोड पर पानी, यू नो अबाउट इन इंडिया व्हाट हैपन्स कि अगर बहुत ज़्यादा रेन होती है तो रोड पर पानी जम जाती है और ट्रैफिक की इश्यूज भी बहुत ज़्यादा आने लगती है. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जस्ट चेक विद योर सेंटर, कहाँ पे आपकी सेंटर है, कितनी दूर है, एंड उस दिन की वेदर रिपोर्ट भी आप चेक करना और ट्राई टू आप थोड़ा जल्दी निकलो घर से अपने सेंटर के लिए, सो दैट टू अवॉइड ऑल दिस एंग्जाइटीज, टू अवॉइड ऑल दिस ट्रैफिक, और ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए you should just check these things out, right? So that's all for today, guys. All the best for the exam. Thank you so much and have a nice day.